تو صبح صبح کا ٹائم ہے، یہ ہیں بسکٹ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے چائے. تو ہم ساتھ ساتھ چائے پیئیں گے، ساتھ ساتھ ولاگ بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو صرف اس بنا پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ روزہ رکھنے کی خواہش ظاہر کی تھی. کچھ سوچیں. جو تمہارا کزن فوت ہو گیا تھا تو اس کا کیا بنا، وہ کدھر ہے؟ تو وہ کہتا ہے وہ اس قبر تو چھڑ گئی. یہ سولر پلیٹ، ٹھیک ہے، یہ اس کا کنیکشن یہاں سے جا رہا ہے نیچے، وہ دیکھو نیچے، ٹھیک ہے. نیچے روم میں کولر وغیرہ لگا ہوا ہے، اے سی کولر، جو آپ کو پچھلے ولاگ میں دکھایا تھا. السلام علیکم، کیا حال ہے، کیسے امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ دیکھ رہے ہیں ولاگ جو میں آپ کا پیارا سا بھائی اسد الرحمان شاہ. جو بھی چینل پر نیا لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. اس لیے نہیں کہ میرے سبسکرائبرز کم ہیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو ڈیلی اچھے اور پیارے پیارے ولاگز ملتے رہیں. باقی صبح صبح کا ٹائم ہے، میں ابھی اٹھا ہوں، نماز وغیرہ پڑھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، تھوڑی بہت واکنگ کی ہے. تو میں نے کہا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں. تو میری عادت ہے اچھی لگے بری لگے آپ کی مرضی ہے، میری عادت ہے میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کھاتا پیتا ہوں. تو صبح صبح کا ٹائم ہے، یہ ہیں بسکٹ، ٹھیک ہے، اور یہ ہے چائے. تو ہم ساتھ ساتھ چائے پیئیں گے، ساتھ ساتھ ولاگ بنائیں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے چائے پی لیتے ہیں. باقی یہ بتائیں کہ جو میں نے کل والا ولاگ بنایا تھا وہ آپ کو کیسا لگا. تو کل والا ولاگ کیونکہ چینج تھا، اس میں مزے کا اس لیے تھا، باقی ولاگ سے مختلف اس لیے تھا کیونکہ اس ولاگ میں نے اپنے مکمل گھر کا جہاں ہم رہتے ہیں، جہاں ہماری رہائش ہے، اور مسجد کا مکمل انٹرو کرایا تھا، دکھایا تھا کہ مسجد کیسی ہے، لوکیشن دکھائی تھی کیسی ہے، گھر کی لوکیشن، سچویشن، سارا کچھ دکھایا تھا. اس لیے وہ ولاگ مزے کا تھا. تو آج میں نے کہا نیکسٹ ولاگ بنانا ہے. تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایڈیٹنگ کرنے میں ٹائم بہت لگتا ہے. ایسے ہی میں کل رات کو 1:20 پر سویا ہوں. 1:20 پر. تب تک میں عشاء کے بعد نماز عشاء کے بعد میں ولاگ ہی ایڈٹ کرتا رہا ہوں. پہلے ایڈٹ کیا، اس کے بعد جب فل مکمل ایڈٹ ہو گیا پھر میں نے تھمبنیل بنایا، کلک پیسٹ. 2 بناتا ہوتا ہوں، جو ایک بنا لیتا ہوں نا جب اپلوڈ کرتا ہوں تب لگاتا ہوں، 1 سے 2 دن بعد تھمبنیل میں چینج کر دیتا ہوں. تو 2 تھمبنیل بنانے تھے، وہ 2 تھمبنیل بنائے، ایڈٹ کی، اس کے بعد میں نے جناب سکیجول پہ لگا کے اپلوڈ کی. تو میں رات کو 1:20 پر سویا ہوں. 3:15 پہ اٹھ گیا، نماز پڑھی، اسپارہ پڑھا، قرآن پاک پڑھا، آپ کے پاس آ گئے ہیں. اب تقریباً یہ جو آج کا ولاگ ہے، یعنی کہ جو آپ کو کل ملنا ہے، یہ آج کا سارا دن میں نے بنانا ہے، شوٹ کرنا ہے، ولاگ بنانا ہے، ساتھ ساتھ کیپچر کرتے جانا ہے. اس کو پھر میں نے رات کو ایڈٹ کرنا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آج سارا دن بھی میں نے نہیں سونا. تو میں رات کو صرف 1.5 سے 2 سے 2.5 گھنٹے سویا ہوں. 2 گھنٹے بنتے ہیں تقریباً، 2-2.5 گھنٹے. تو اپنے سامنے اتنی محنت ہم کرتے ہیں، ہم صرف کیا چاہتے ہیں، آپ کی طرف سے تھوڑا سا لائک، تھوڑا سا سپورٹ، تھوڑی سی اپریشیٹ کر دیں تاکہ بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے. جتنی ٹینشن ہوتی ہے، جتنی تھکن ہوتی ہے، سب ختم ہو جاتی ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، جب کوئی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے، آپ کا حوصلہ بڑھاتا ہے، آپ کو سپورٹ کرتا ہے، تو سپورٹ کیا کریں کہ انشاءاللہ. اور ہاں، آپ کو جیسا کہ معلوم ہوگا کہ جمعۃ المبارک کے دن، جو اب جمعہ آنے والا ہے، فرائیڈے،
10 मुहर्रम है, 10 मुहर्रमुल हराम है। जुमेरात के दिन यानी कि उससे एक दिन पहले थर्सडे को 9 मुहर्रमुल हराम है, ठीक है। आज है वेनसडे, क्या मतलब आज 8 मुहर्रम है। तो ये जो मुहर्रमुल हराम का महीना है ना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत अजीज है। पता क्यों? आप खुद सोचें कि एक ऐसा महीना भी है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला के इतने करीबी, इतने अजीज, इतने प्यारे, जो अल्लाह को बहुत प्यारे हैं, अल्लाह ने उन्हें इसी महीने में मुख्तलिफ आजमाइशात से आजमाया, ठीक है। किसी बेचारे को पानी की प्यास से, किसी को मौत दे के, किसी को किसी तरह, किसी को किसी तरह, किसी को भूखा रख के, किसी को गर्मी की शिद्दत से। इस महीने में अल्लाह तबारक, वैसे तो अल्लाह नबी पाक के दौर में और बाकी अंबिया करम कितनी यानी कि ना जंगी होती थी, लेकिन ये जो यह महीना है, ये जो मंथ है, ये जो एक कह लो कि समझो पहले 10 दिन, पहला अशरा मुहर्रम हराम का, ये इतना टाइट और इतना टफ डेज है कि इन दिनों को हमें चाहिए कि ना हम अल्लाह को बहुत याद करें, अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह को मनाएं, क्योंकि इन 10 दिन में हमारी उम्मत, हमारे दीन के कई सिपा सलार अल्लाह तबारक व तआला को प्यारे होगा। हमारी इस उम्मत के कई जो हमारी उम्मत को चलाने वाले थे, मैनेजर थे, संभालने वाले थे, जो हमारी यानी कि हमारे जो दीन का जो प्लेटफॉर्म है उस पे उन्होंने ग्रिप डाली हुई थी, उसको वो एक कंट्रोल कर रहे थे, ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें अपने पास बुला लिया, आजमाइशात के जरिए, कुछ बेचारे कत्ल के जरिए, कुछ शहीद हुए, जैसे भी। तो ये जो मंथ है ना, बहुत खतरनाक, मतलब बहुत अल्लाह तबारक व तआला को अजीज है। कैसे अजीज है? क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला के अजीज अल्लाह को प्यारे हो गए थे। तो इसमें ये जो 9 और 10 मुहर्रम आ रहा है ना, यानी कि जुमेरात और जुमा, थर्सडे और फ्राइडे, इसको डेट बन रही है 25 जून 9 मुहर्रम, आगे जुम्मे के दिन 26 जून 10 मुहर्रम, और आगे आपको एक और बात बता दूं कि 27 जून 11 मुहर्रम। अभी जो 3 दिन है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है कि जब नबी पाक जिंदा थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 मुहर्रम का रोजा रखा और आपने फरमाया कि मेरी जिंदगी रही तो मैं 11 मुहर्रम का रोजा भी रखूंगा। लेकिन उससे चंद माह बाद रबीउल अव्वल के मंथ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल फरमा, ठीक है, वो नहीं रख सके, लेकिन उन्होंने 10 मुहर्रम का रोजा रखा था। अब हमारे लिए क्या है? हमारे लिए ये है कि हमें चाहिए कि हम फिर रखें। हमें क्या चाहिए? या हम 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रख लें, 2 रोजे रखने हैं, वो आपको बताता हूँ क्यों। या हम रख लें 10 और 11 मुहर्रम का। क्या मतलब? जो अभी जुमा आ रहा है उससे पहले जुमेरात यानी कि कल, हमें चाहिए या हम जुमेरात और जुम्मे का रख लें, या हम रख लें जुम्मे और हफ्ते का। रखना है लगातार 2 दिन, ऐसा नहीं कर सकते जुमेरात और हफ्ते को, ये जुम्मे और जुमेरात हफ्ते को, ऐसे करना है, मतलब तरतीब रखनी है, ठीक है। उसका ये है कि जब नबी पाक ने ये कहा था, उसके बाद इंतकाल फरमा गया, तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने नबी पाक ने जिस दिन का कहा था कि मैं 11 मुहर्रम को रोजा रखूंगा, सहाबा कराम ने रखा था। 10 का तो रखा ही रखा, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखा था। 11 मुहर्रम का रोजा भी सहाबा कराम ने हम पर तो नमाजें फर्ज है, हम तो नमाजें छोड़ देते हैं, तिलावत छोड़ देते हैं, कुरान छोड़ देते हैं, और सहाबा कराम ने जो नबी पाक ने ख्वाहिश की है, सहाबा कराम ने वो भी पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। तो इसलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, ये सहाबा कराम मुझ पर राजी हैं, मैं इन पर राजी हूँ। देख लें, तभी तो जन्नत के वारिस बने हैं, ऐसे नहीं वारिस बन के। अल्लाह तबारक व तआला को जो सबसे ज्यादा अजीज है वो सहाबा कराम है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि हमें चाहिए कि हम 9 या 10 या 10 और
11 इसका मुहर्रम और हराम के इन महीनों का रोजा रखें। इनकी सबसे बड़ी फजीलत आपको शॉर्ट फॉर्म में बताता हूँ कि गुज़श्ता साल के गुनाह माफ हो जाते हैं। गुज़श्ता साल जितने गुनाह हैं, छोटे मोटे सगीरा कबीरा, अल्लाह तबारक व तआला सब माफ कर पक्का। हाँ जी, तो चाय वगैरह पी ली है और आपको छोटी सी बात भी बता दी है, मुहर्रम उल हराम की फजीलत बता दी है। तो फर्स्ट पार्ट तो लाजमी आप देखिएगा कि रोज़े रखने चाहिए 9 और 10 मुहर्रम या 10 और 11 मुहर्रम का, आपको इसकी फजीलत मैंने बता दी है। और सेकंड ये कि फ्री हो गए हैं, चाय वगैरह पी ली है, तो अब हम करते हैं जिम स्टार्ट। Step number 2. AS. Step number 3. Okay. Step number 4. Step number 5. Done. हाँ जी, तो जिम भी हो गई, चाय भी पी ली और फ्रेश 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 प्यारा प्यारा मौसम भी एंजॉय कर लिया। आपको एक चीज दिखाते हैं, माशाल्लाह देखो कितना प्यारा मौसम है, कितना खूबसूरत। वो देखो परिंदे जा रहे हैं। अभी इधर ही थे यार, गायब हो गए। अच्छा, ये देखो पर कितना प्यारा मौसम, ठीक है। ये देखो, बाय 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 बाय। वाओ, ठीक है, ये मैं छत पर हूँ। ये है टैंकी लगी हुई है, आपको एक आइडिया भी दिखा देते हैं इसका। ये यहाँ से पाइप जा रहा है नीचे, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से वो नीचे यहाँ से जाता है पानी, ठीक है। उधर से पाइप वगैरह लगा होगा, साथ में जो मस्जिद है, ठीक है, यहाँ से साथ ही मस्जिद में भी पानी जाता है। और ये लगी हुई है सोलर प्लेट, ठीक है। ये इसका कनेक्शन यहाँ से जा रहा है नीचे, वो देखो नीचे, ठीक है। नीचे रूम में कूलर वगैरह लगा हुआ है, एसी कूलर, जो आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था, वहां पे जाता है इसका कनेक्शन, ठीक है।
और सुबह सुबह यार बहुत प्यारा मौसम होता है, बहुत मजे का, बहुत बंदा फ्रेश हो जाता है, बहुत इंजॉय फील करता है। उल इसलिए आ गया यार, तकरीबन 20-22 दिन हो गए हैं स्कूल नहीं गए, पेपर जो हो गए हैं, क्या करने जाके 10वीं के पेपर खत्म फिनिश, तो स्कूल की याद आ जाती है यार। कभी कभी बंदा स्कूल जाता है तो बंदे को कहता है कि ना, बंदा कहता है घर चला जाए, छुट्टी करे, स्कूल ना जाए, तो स्कूल ना जाना पड़े। लेकिन जब बंदा स्कूल छूट जाता है या स्कूल से जब बंदा आ जाता है, फिर बंदे को ये रियलाइज होता है कि स्कूल की अपनी अहमियत है। भले ही आजकल की जो टेक्नोलॉजी निकल चुकी है, आजकल की जो लाइफ आ चुकी है, कोई शक नहीं है कि शायद कुछ लोग तालीम के बगैर भी बहुत तरक्की कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जो एजुकेशन की अहमियत है, चाहे वो दीनी हो चाहे दुनियावी हो, उसकी अहमियत के बराबर और किसी की अहमियत नहीं है। ठीक है, तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टेप में। तो अभी के लिए टाटा। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो सारा दिन गुजर गया लेकिन मैंने व्लॉग नहीं बनाया था, उसकी वजह बहुत नहीं थी, उसकी वजह सिर्फ इतनी सी थी कि मैं आराम फरमा रहा था। और आज आपको एक और भी मैंने बात बतानी है कि कल, क्योंकि आपको मैंने बताया 9 मुहर्रम है, परसों 10 मुहर्रम है, तो कल और परसों इंशाल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से मैंने रखना है रोजा, मेरे बाबा ने भी रखना है और सैफ ने भी रोजा रखना है, जिसकी वजह से मैं कल व्लॉग नहीं अपलोड करूंगा, ना ही परसों व्लॉग अपलोड करूंगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे इंशाल्लाह व्लॉग आएगा। बाकी ये है कि इंशाल्लाह व्लॉग देखते रहें, तो 1-2 दिन व्लॉग ना आने से कुछ नहीं हो जाता। बाकी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये मैंने सुबह आपको कह दिया। बाकी मौसम आपके सामने है, ये देखो कितना प्यारा मौसम है। मैं इधर बाहर आया हुआ हूँ, तो ये देखो, ये हमारा जो इलाका है उसके, ये आपको मैं अपना घर दिखाता हूँ, जो हमारी मस्जिद है ये यहाँ पर। ठीक है, यहाँ हमारी मस्जिद है, वो सामने मीनार नजर आ रहा है। ठीक है, और उस छत पे खड़ा होकर मैं व्लॉग बनाता उठता हूँ, शूटिंग वगैरह करता हूँ। और ये है उस इलाका मुकम्मल, यानी कि ना उसका बाहर वाला हिस्सा, जहाँ लोगों की मतलब जमीनें वगैरह है, जायदाद वगैरह है। तो मैं हवा बहुत ज्यादा चल रही थी, तो एक लड़का है लेकिन वो कैमरे के अंदर नहीं आना चाहता, ये मैं मजाक कर रहा हूँ, कट डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम, कट डाल दूंगा। तो मैं बाहर हूँ, मैंने कहा चलो बहुत प्यारा मौसम है, वीडियो बनाते हैं। और मैंने एक ऑडिशन वीडियो भी बनानी थी, ट्राई भी की है, लेकिन नहीं बन रही क्योंकि हवा बहुत चल रही है, जिसकी वजह से मुश्किल हो रही थी। ठीक है, बाकी आज की फनी बात ये है कि एक लड़का गया कब्रिस्तान में अपने दोस्त के पास में गया, तो अपने दोस्त को कहता है यहाँ पे तुम्हारे कजन की कब्र थी, जो तुम्हारा कजन फोत हो गया था, तो उसका क्या बना, वो किधर है? तो वो कहता है वो इस कब्र तो छड़ गई। वो कहता है कि वो ये कब्र छोड़ गया और ज्वाइन लेके कहीं और उसने ज्वाइन मांगी है। तो बात है, और आज का जो सबक है वो मैंने आपको इस पार्ट में दे दिया था कि 9 और 10 मुहर्रम का रोजा रखना चाहिए, बहुत अहमियत है, बहुत कदर है, बहुत इज्जत है इसकी। और हाँ, मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि आज से मतलब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मेरा फुल व्लॉग नहीं आएगा, फुल व्लॉग नहीं आएगा, शॉर्ट व्लॉग आएगा, मिनी व्लॉग आएगा, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट का। बहुत अगर कोई इंटरेस्टिंग है तो 3 मिनट, 3 मिनट से ज़्यादा लेंथी व्लॉग नहीं होगा, शॉर्ट व्लॉग जाएंगे, मिनी व्लॉग जाएंगे। इंशाल्लाह आपने वो देखने हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जारी रखना है। और आज के व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का भी एंड होने लगा है, बादल गरज रहे हैं, कोई पता नहीं किसी वक्त भी बारिश होने लग गया है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तक के लिए बाय बाय।